Good morning students. How are you? Welcome back in my class. Today we are going to start a topic that is auxiliaries. Yes, auxiliary basically are helping verbs that helps the main verb. These are of two types. First is primary auxiliaries and second is modal auxiliaries. Primary auxiliaries that helps main verb like is, am, are, do, does, did, was, were, that we have already done in tenses. I hope it is clear to you. Now, second is modal auxiliaries that we are going to start today. Modal auxiliaries, already I have written all the modal auxiliaries on the board. These are like can, could, may, might, shall, should, will. All these are modal auxiliaries that are used with the main verb to help to specify the meaning of the main verb, right? And keep it in your mind always. Then when we use modal auxiliaries, we should use first form of the verb after that. Whenever we are going to use modal auxiliaries, after that we need to use first form of the verb. Got it? Is it clear? So what we have done still, first that auxiliaries that helps the main verb, and these are of two types. First is primary auxiliaries and second is modal auxiliaries. Primary auxiliaries we have done in tenses, that are the helping verbs, and now we are going to start modal auxiliaries that are used with the main verb, first form of the verb, right? So let's start. First is can. Can that shows ability. जो एबिलिटी हमारे काम करने की कैपेसिटी को, हमारी एबिलिटी को शो करते हो, उसके लिए अगर हमें हमारे वर्क में हमारी एबिलिटी शो करनी हो, हमारी कैपेसिटी शो करनी हो काम करने की, देन वी यूज कैन. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन राइट ऑन द बोर्ड फॉर फुल डे. दिस इज माई एबिलिटी, है ना? तो मैंने अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी यूज करी? यस, दैट इज कैन. और कोई एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट ए चेयर, है ना? चेयर को उठा सकती हूँ, तो मेरी एबिलिटी क्या है? आई कैन लिफ्ट दैट चेयर. चेयर को उठाना मेरी एबिलिटी है, तो मुझे अपनी एबिलिटी शो करनी है, देन आई विल यूज मॉडल ऑक्सिलरी दैट इज कैन. ओके, नेक्स्ट इज टू इंडिकेट परमिशन. परमिशन देने के लिए, किसी को परमिशन शो करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो देयर, है ना? मैंने परमिशन ग्रांट कर दी कि हाँ तुम जा सकते हो वहां पे, है ना? परमिशन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? दैट इज can modal auxiliary. Okay, now next, could. Basically could is the past tense of can. So it is used to ask polite question. Could you give me one glass water, है ना? Could you help me to solve the sum, है ना? तो polite questions हम किसी से कर रहे हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं could. Past form I have already told you, this is the past form of can. अब can है हमारी एबिलिटी को जो आज हम कर सकते हैं, है ना? हमारी एबिलिटी को शो करता है. तो could जो है that is used to indicate past ability, जो आज हम नहीं कर सकते लेकिन पहले कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, I can sing, right? और आपको लगता है कि पहले आप नहीं कर सकते थे लेकिन अब आपने सीख लिया. If you have learned from somewhere and from someone, so you can sing now, है ना? But if you want to say that now I cannot sing but in the past I was able to sing, then the word modal auxiliary that can be used, that is could. I could sing once upon a time, है ना? एक बार था जब मैं गा सकती थी, पर आज मेरा शायद मे बी I have throat aching or some infection or any problem that I have faced. So not now I cannot sing, but yes, in the past, if we are saying like I could sing, it means the person is saying that this was the ability of the past.
he was able to sing in the past, not now. Clear? Okay. Now next, may. To ask for permission formally. हम लोग क्लास में एंटर करते हैं, तो क्लास में एंटर करने से पहले मैम से क्या से परमिशन लेते हैं? मे आई कम, है ना? फॉर्मल, हम लोग टीचर से एक फॉर्मल रिलेशन रखते हैं, है ना? तो वहां पे क्या है, हम लोग कैसे रिक्वेस्ट करते हैं मैम से? मे आई, है ना? मे आई गो देयर, मे आई टेक दिस, राइट? तो फॉर्मल परमिशंस के लिए वी यूज मे. टू एक्सप्रेस अ विश, कोई विश करनी हो, मे गॉड ब्लेस यू, है ना? सो सिंपल, वेरी कॉमन. विश करने के लिए वी यूज मे. टू इंडिकेट अ गुड पॉसिबिलिटी, कोई काम को करने की पॉसिबिलिटी कितनी है. अगर आपको लगता है कि नॉर्मल सी पॉसिबिलिटी है, यू आर नॉट श्योर कि वो काम होएगा ही हो ही जाएगा, और देर आर नॉट सो मच पॉसिबिलिटीज फॉर दैट फॉर द वर्क, देन यू कैन यूज for good possibility we can use may. For example, it may rain. आप लोग ज्यादा श्योर नहीं हो, your sky is cloudy, then you can say it may rain, है ना? And next is might. May is used to indicate a good possibility, where we use might to indicate weak possibility. For example, if I'll say the sky is cloudy, it may rain, है ना? एक गुड पॉसिबिलिटी है कि क्लाउडी है तो हो सकती है बारिश, पॉसिबिलिटी है, वी आर नॉट श्योर स्टिल, है ना? एंड टू शो वीक पॉसिबिलिटी वी यूज माइट. फॉर एग्जाम्पल, वी माइट गो टू स्कूल इफ द रेन स्टॉप्स, है ना? अगर रुक जाती है तो पॉसिबिलिटी हमारी क्या होगी कि शायद उसके बाद अगर बारिश रुक जाए, तो हमें नहीं पता रुकेगी या नहीं रुकेगी, बहुत तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कि रुकेगी तो जाएगा. अब हमें नहीं पता कि वो कितनी रेन के रुकने की कितनी पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, और उसके बाद वो जा सकता है स्कूल, है ना? तो पॉसिबिलिटी जो है माइट में, हम जब हमारे पास बहुत कम पॉसिबिलिटीज हों, देन वी यूज माइट, और फॉर गुड रीजंस, फॉर गुड पॉसिबिलिटीज वी यूज मे. ओके. Next, shall, to indicate offered suggestion, but for interrogative sentences. For example, shall I carry these books at home, है ना? किसी को आप ऑफर कर रहे हो और या सजेशन कर रहे हो, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, देन यू हैव टू यूज, मतलब आप पूरी तरह से उसको ऑर्डर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसको ऑफर कर रहे हो, अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो ना, देन वी यूज शैल. एल्स वी यूज शैल टू एक्सप्रेस कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट. In tenses, I have given you a rule for using shall, that we need to use shall with I or we, right? In tenses we have done, but I already told you that if we want to discuss, if we want to express our promise, है ना, कि no, surely the person will do this, है ना, तो then we use alternate with I or we use will, and for the rest of the persons we use shall. For the same thing, to express command or promise, है ना, कमांड और प्रॉमिस अगर हमें करना है तो बाकी सारे पर्सन्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, देन शैल. ठीक है. नेक्स्ट इज शुड, टू मेक अ सजेशन. इट्स वेरी कॉमन यूज ऑफ शुड टू मेक सजेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू से यू आर नॉट फीलिंग वेल, सो यू शुड गो टू डॉक्टर, है ना? अगर तुम फील अच्छा नहीं कर रहे हो, देन यू शुड गो टू डॉक्टर, है ना? एडवाइस कर रहे हैं हम लोग, और सजेस्ट करने के लिए देन वी यूज शुड. टू एक्सप्रेस अ सुपोजिशन, इफ द क्लॉज स्टार्ट्स विद इफ. इफ वर्ड से अगर कोई सेंटेंस, हमारा क्लॉज क्या है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना? कोई सेंटेंस जो है पार्ट, सेंटेंस का पार्ट दैट स्टार्ट्स विद इफ, है ना, वो क्लॉज जो है वो इफ से स्टार्ट हो रहा है, देन वी यूज शुड फॉर पॉसिबिलिटीज, फॉर सुपोजिशन कि हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, if
it should rain, the match will be called off, है ना। तो अगर रेन होती है तो मैच जो है बंद हो सकता है ना। तो फिर हमने सपोज कर लिया कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। हम लोग कुछ सपोज करते हैं, तो सेंटेंस क्या है, इफ से स्टार्ट होगा देन वी विल यूज शुड फॉर सेंटेंस, है ना। तो हम लोग वर्ब के लिए यूज करेंगे मॉडल एक्सुलरी शुड। ओके, नेक्स्ट विल, टू एक्सप्रेस अ डिसीजन और अ चॉइस। इट्स वेरी सिंपल, है ना। डिसीजन हमें को देना है, यू विल गो देयर, डिसीजन दे दिया, आपको चॉइस दे दी, देन वी यूज विल। इज विल टू एक्सप्रेस अ डिसीजन और अ चॉइस। आई विल कुक अ डिलीशियस फूड टुडे, है ना। ये मेरा डिसीजन है ना। तो अपने डिसीजन को शो करने के लिए वी यूज विल। टू इंडिकेट अ हैबिट, हैबिट को शो करने के लिए ही विल गो फॉर स्विमिंग क्लास एज यूजुअल। उसकी हैबिट है, वो जाता है तो आज भी जाएगा, आगे भी जाएगा, है ना। नेक्स्ट, टू सजेस्ट एन इन्विटेशन, विल यू गो विद मी, है ना। किसी से सजेशन ले रहे हैं और इन्विटेशन भी दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज कर will but in interrogative sentences. Next is would. Would is used to make a polite request. Polite request करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे would. For example, would you bring a coffee for me? A cup of coffee? Would you go there? Would you like to have tea? है ना। तो polite request के लिए we use would. In polite offers, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, would you like to have a coffee? Then we use would for polite offers or polite request. मतलब would जो है that shows the politeness. Okay. Next is must. Must is used to express necessity or obligation. You must be on time. Necessity है ना। Fixed determination. I must go there. Determination आपका एक डिसीजन है, फिक्स डिसीजन है कि हाँ मुझे करना ही करना है, मुझे ये रूल फॉलो ही करना है जो मैं अपने बेटरमेंट के लिए कर रही हूँ, बना रही हूँ, तो मुझे वो करना ही करना है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मस्ट। फिक्स डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अर्लियर वी वर आस्किंग we were using for possibility the two auxiliaries, that is may and might. For good possibility we use may, and for weak possibility we were using might. And for strong possibility, for example, he must have forgotten about the invitation, है ना। वो जरूर भूल गया होगा, हम लोग को पूरा पक्का पता है कि वो भूल गया होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, है ना। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज के लिए यूज मस्ट। तो कंपैरिजन अगर सेंटेंसेस में आता है, आपको पहले चेक करना है, सेंटेंस पूरा रीड करना है कि पॉसिबिलिटी कितनी है, ज्यादा है, कम है या बहुत ज्यादा है ना। देन यू हैव टू यूज मे, माइट और मस्ट। नेक्स्ट इज ought to. ought to shows express moral obligation. देखो ऑब्लिगेशन के लिए वी यूज मस्ट, यहाँ पे रूल रेगुलेशंस की बात आती है, देन वी यूज मस्ट। और ought to यूज करते हैं हम लोगों को लगता है कि हमारे नैतिक कर्तव्य है, हमारे मॉरल ड्यूटी है कुछ काम को करने की। फॉर एग्जाम्पल, while क्रॉसिंग द रोड you met with a lady who is sick and she wanted to cross the road. Okay, so what should be your decision? Yes, that is your moral duty to help her, na? आपकी moral duty है, तो फिर then you have to use ought. We ought to help the poor, we ought to help the sick. कि हमारी moral duty बनती है। अगर हमें कुछ किसी को हम प्रॉब्लम में देखते हैं, किसी को मतलब हमें लगता है कि कोई सिचुएशन उसके साथ ठीक नहीं है, देन वी शुड हेल्प ना। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ought to, कि हमें अंदर से लगता है, हमारा कहते हैं ना, हमारे संस्कार कहते हैं, बस वही, जहाँ पे आपको लगे कि आपके इनर सोल जो है आपको अलाउ कर रही है कुछ
हेल्प करने के लिए, किसी के लिए कुछ करने के लिए, देन वी यूज ought to. ठीक है, तो हम लोग सजेशन के लिए या फिर हम लोग किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मली किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, देन वी यूज शुड. But if we are talking about a suggestion that is our rules, in our rules and regulations, then we use must. But if we think that we need to suggest someone that is our moral duty, for our moral duty, then we use ought to. है ना? Next is need. Need तो हमें पता है that denotes necessity or obligation. Must is also used for necessity and obligation and expresses. And need also denotes necessity and obligation. But need जो है एक normal है, लेकिन यहाँ पे must में हम लोग rules के साथ बात करते हैं, है ना? जहाँ पे rules हो जाए, bound हो जाओ आपको वो करने के लिए, वहाँ पे necessity होगी, वो आपको करना ही पड़ेगा. But need, yes, it can be in simple way, है ना? And generally we use it in negative and interrogative sentences. For example, you need not to go there. कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, है ना? आपने उसे नेसेसिटी, मतलब तुम्हें जरूरत ही नहीं है, नेसेसिटी नहीं है कोई, और जहाँ पे रूल रेगुलेशन हो कि करना ही करना है, then we use must. And for negative and interrogative sentences we use need. Next is to do not desire or requirements. जहाँ आपकी desires हो, जनरली हम लोग बोलते हैं ना, हमारी desires हो, negative सेंटेंस में भी हमें यूज करना है. I do not need your help, है ना? मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी हेल्प की. तो डिजायर भी आपकी और रिक्वायरमेंट भी कि मुझे नहीं चाहिए आपकी. देन यूज नीड. ओके, नेक्स्ट इज दैट. दैट इज टू बी बोल्ड इनफ टू. कुछ काम करने के लिए आप डेयर हो रहे हो, बोल्ड इनफ हो रहे हो, देन वी यूज फॉर दैट मीनिंग दैट एज मॉडल ऑक्सिलरीज. टू इंडिकेट अ चैलेंज. क्या डैश शो क्या करता है? चैलेंज को बोल्ड इनफ हो रहे हो, मतलब कोई चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना? तो क्या शो करता है ये? चैलेंज को. डोंट डेयर टू टेक माई नोटबुक. चैलेंज सिबलिंग्स में ये बात होती है. आई डेयर टू टॉक टू टेक योर ऑल द फूड, है ना, फ्रॉम द टेबल और फ्रॉम योर लंच बॉक्स. तो कि क्या है? चैलेंज ही तो दे रहे हैं कि मैं तो डेयर कर लूंगा कि तुम्हारे फूड सारा ले लूंगा, लेकिन रेस्ट इज अपॉन यू. तुम्हें फिर उसके बाद क्या करना है मुझे पता है, तुम ठीक नहीं करोगे, बट मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, है ना? तो सुनिए, डेयर वर्ड में अपने आप में एक चैलेंज है. तो जहाँ पे आपको लगता है कि कोई बोल्ड इनफ आप कुछ कर रहे हो और यू आर बोल्ड इनफ टू डू समथिंग एंड देयर इज अ चैलेंज बिहाइंड दैट डिसीजन, इट मीन्स you need to use that as modal auxiliary. Okay, this was all about modal auxiliaries, and one more is that, and that is used to, that shows the past continuity. Like I used to go for morning walk, कि मैं पहले जाया करती थी, आपकी past habit को show करता है. Basically used to is used to show your past habits. Today, nowadays, you are not doing this, but in the past, when you were doing that work in continuity, that shows your habit also. That was your habit. Then, to show that past habit, you used to modal auxiliary. I used to read books, है ना? कि मैं पहले तो बुक्स काफी पढ़ा करती थी, है ना? आपको आप अपने पास्ट हैबिट को शो कर, है ना? आज नहीं है वो हैबिट आपकी, लेकिन पास्ट में थी. देन टू शो योर पास्ट हैबिट्स यूज्ड टू. ओके, दिस इज ऑल अबाउट modal auxiliaries. Let's talk about it in brief. Can and could. These both shows the ability. Can is show the present ability that you can do now, and could is used to show your past ability. Next is may. May is used to take permission, ask for permission, or for possibility, good possibility, where must is used to show weak possibilities, and might is used to show weak possibility, and must is used to
indicate strong possibility. Next is shall and will. Shall is used with I or we, and will is used with rest of the persons, and it shows the command. Next is should. Should is used for suggestion. Suggestion के लिए और हम क्या use करते हैं? Ought to and must. But where we talk about rules and regulations, then for rules and regulation we use must, and for moral obligations, moral suggestion, then we use ought to. And next is would. Would is used for politeness, polite request, polite permission, polite invitation. है ना? And next is need. Need shows the necessity, desire, and that indicates the challenge. So use all these modal auxiliaries with only verb form, first form of the verb. This is the main rule for it. Remember it and go for it now. Keep practicing. Do all the exercises. But still, if you have any problem, come to me anytime. Thank you. Bye-bye. Take care.